जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदनन्दना, जय व्रजजनरञ्जना, जय व्रजजनरञ्जना, जय जय यमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, 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 जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय जय यशोदनन्दना, जय व्रजजनरञ्जना, जय व्रजजनरञ्जना, जय जय यमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव,
जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री राधा माधव की अंतरा श्री श्रीमद् भागवतम की जय अंतरा श्री श्रीमद् चैतन्य चरितामृता की जय शील प्रभुपाद की जय शील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णवंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वांछा हरे कृष्णा। तो हिंदी में क्लास देना है ना, बीच बीच में गुण के पकड़ में हो जाते ना तो अंग्रेजी आ जाएगा। Mix whatever. Okay, whatever. Then this is in. I will read this anyway. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य चरितामृता की जय। हाँ सॉरी इंट्रोडक्शन ओके। Hare Krishna. So we are very fortunate to have with us His Grace Kal Chakra Krishna Prabhu. He is a disciple of His Holiness Mahavishnu Swami Maharaj. And he is also by professional, he is IIT and also and practicing Krishna consciousness from last 25 years. So he was initiated by Maharaj in 2001 in Minneapolis and was personally trained by Maharaj in scrutinizing, studying Srimad Prabhupada books, especially Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. From last 25 years, he is striving to follow the instruction of his spiritual master and Srila Prabhupada, traveling around the world and inspiring every devotees, everyone in seriously studying Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam. He has been conducting several online and in-person study groups over years with the aim of inspiring devotees to scrutinizingly study Srila Prabhupada's books and relish them. He is running an online forum called Grantharaj for last 19 years, inspired and guided by his spiritual master. There are several thousands of members subscribed to this forum where the devotees share their personal realizations and practice application of Srila Prabhupada's Vani. These articles are utilized as an effective preaching tool by hundreds of devotees around the world. He has also printed 4 books titled Grantharaj, the King of Scriptures, Srimad Bhagavatam in Practice, Volume 1 and 2, and Pulse of Wisdom based on teachings of Srila Mahavishnu Goswami Maharaj. So we are very grateful to Prabhuji. He is very busy. Still he has come, taken a time for giving us his assistance to all of us. So we are looking for your assistance. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhu. So let us thank and also welcome him by loudly chanting 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. प्रभु ये 3 मिनट मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा। Just for half a minute. Anyway, it's nice to see you, Prabhu. Hari Prabhu. I mean, how many years? It's almost 10 years. We are coming. देखिए, I mean, भगवान अरे बोल जाए महाजन की जाए। No, I'm being made to sit. So nice to see you, Prabhu. Hare Krishna. Yesterday I was looking forward to you in Vishal Nagar. You were there? Oh, you were here. Okay. Oh yeah, the 4 days, 3 days. Yeah, very nice, Prabhu. So we will read from Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 24, verse number 323.
अमहेन एब केह बातुल है यही दृष्टे भागवतेर अर्थ जाने अमहेन एब केह बातुल है यही दृष्टे भागवतेर अर्थ जाने ए दृष्टे भागवतेर अर्थ जाने आमहेन एव केह बातुल है ए दृष्टे भागवतेर अर्थ जाने आमहेन एव केह बातुल है हे दृष्टे भागवतेर अर्थ जाने आमहेन मेरे ही समान ये बा जो कह कोई व्यक्ति बातुल है पागल बन जाता है यही दृष्टे इस प्रक्रिया के अनुसार भागवतेर श्रीमद् भागवत के अर्थों को जाने वह समझ सकता है। अनुवाद जय श्री प्रभुपाद की जय। यदि कोई मेरे ही समान पागल बनता है तो इस विधि से वह भी श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझ सकता है। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बतलाते हैं कि जो लोग भौतिकतावादी हैं वे श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के ही समान पागल बनना होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के अतिरिक्त श्री चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य भी हैं जिन्होंने पागल के समान भगवत प्रेम प्रदर्शित किया। अपने ही द्वारा लिखित श्लोक के अनुसार युगायतम निमेषेण वे कहते हैं कि उन्हें एक क्षण 12 वर्षों के समान लगता है। चक्षुषा प्रावृषायितम मेरे अश्रु वर्षा की धारा के समान बह रहे हैं। शून्यायितम जगत सर्वम मुझे लगता है कि सारा ब्रह्मांड शून्य है। क्यों? गोविंद विरहेन में गोविंद अर्थात श्री कृष्ण से बिछोड़ जाने से। कृष्ण के लिए पागल श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलकर ही श्रीमद् भागवत को समझा जा सकता है, किंतु हम श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुकरण नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण को समझने के लिए निष्ठावान न हो तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण को समझने के लिए निष्ठावान न हो तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। श्रीमद् भागवत में कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पूर्ण विवरण दिया हुआ है। प्रथम 9 स्कंद बतलाते हैं कि कृष्ण कौन है और 10वें स्कंद में भगवान के जन्म तथा कार्यों का वर्णन हुआ है। भगवत गीता में कहा गया है जन्म कर्म च मे दिव्यम। कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान दिव्य है, लौकिक नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण को तथा उनके आविर्भाव एवं तिरोधान को पूरी तरह समझ लेता है वह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में स्वयं कृष्ण द्वारा की गई है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन से हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से कृष्ण के विषय में सीखना चाहिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण नहीं करते वे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकते। जय श्री प्रभुपाद ट्रांसलेट पर्पस की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्री परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरं। नमो विष्णुपदाय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। यह अध्याय है ना, बहुत बढ़िया सुंदर अध्याय है। ये इस अध्याय का नाम है आत्माराम श्लोक की 61 ना 64 व्याख्या। 64 नहीं, इधर तो 61 लिखा है। हाँ 61 ही है। 64 3 4 और एक्स्ट्रा बाई 61 गेट 3 फ्री। ये इतना बढ़िया अध्याय है। सिर्फ एक श्लोक को लेकर पूरे अध्याय का सब श्लोक में इस एक श्लोक का अर्थ फैला हुआ है। और यह है सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे चैतन्य चरितामृत में। सबसे बड़ा में पहला या दूसरा, सिर्फ एक श्लोक में को लेकर चैतन्य महाप्रभु इसके अर्थ बताते हैं। देखिए इसका आरंभ है ना, बहुत सुंदर है। कैसे शुरुआत होता है ये जो पहले इस अध्याय के पहले हमारे चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में मुलाकात हो रहा है। तो उस समय क्या हो रहा है, भगवान वो वेदांतवादी है तो ऐसे वेद के बारे में उनको समझाते हैं। भगवान तो ऐसे ही बैठ रहे हैं। उसके बाद वो उनको थोड़ा वो कंफ्यूज हो गए। तो वो सोच रहे थे कि ये समझते हैं या सुनते हैं या सुनते नहीं। बहुत नम्रता है, लेकिन वो ऐसे ही बैठ रहे हैं, पूछते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं। हमको भी कुछ ऐसा तकलीफ हो जाता है ना, लोग 1 घंटे के बाद हम पूछते हैं कुछ प्रश्न है तो उनके मन में एक ही प्रश्न है, कब ये खत्म करेगा और हमारा महाप्रसाद गोविंद शुरू होगा। लेकिन वो तो पूछ नहीं सकते। लेकिन हम जब भी हम इधर आते हैं ना, पूरे आते हैं ना, वो भागवतम क्लास के बाद 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए अकेले वो एक छोटा सा ग्रुप के साथ और भी एक और प्रश्न और उत्तर का थोड़ा एक वो क्या बोलते हैं जुगलबंदी ऐसे हो जाता है। दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली, दिस इज बिकॉज ऑफ द नाइस स्टैंडर्ड सेट बाय द लीडर्स। जैसे राधेश्याम प्रभु जी है, कन्हैया ठाकुर प्रभु जी है, रेवतीपति प्रभु और कोई भी और भी है लोग सब, इन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया, जो स्थिर प्लेटफॉर्म, द स्टैंडर्ड। सो प्रभुपाद सेज Manasa word is explaining very nicely in the 1.5.10. is a very beautiful word to understand. कैसे मानसा यानी क्या है, तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा बोलते हैं ना, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम इसको बाय हार्ट कहते हैं उधर एनवीसीसी में सब पीडीसी लोगों के साथ। उनको बहुत आनंद आ गया, मैं परपोर्ट को भी मैं मनन कर सकता हूँ। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट प्रभुपाद इज यूजिंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Such spiritually advanced men are also called Manasa because they always keep up the standard of transcendental voluntary service to the Lord on the spiritual plane. Loaded with heavy words. Such because they always keep up the standard of, standard को क्या बोलते हैं, स्तर बोलते हैं क्या, स्तर बोलते हैं, standard
स्तर। तो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसेंडेंटल वॉलंटरी सर्विस, दिव्य और वॉलंटरी को क्या बोलते हैं? खुद खुद अपने आप, स्वेच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छा सेवा टू द लॉर्ड ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन। पहले सर्विस, सेवा करना चाहिए, वो सेवा वॉलंटरी होना चाहिए, स्वेच्छा। कोई ऐसे बोल के उनके बाद भी मैं कर सकता, ऐसे अगर ऐसा है कि कोई बोलने के बाद ही हमको करना है तो भगवान से मांगना है, भगवान किसी को भेज दो तो मुझे सेवा दे देगा। ऐसे पूछने से भगवान हमको हमारे को एक लीडर ऐसा भेज देंगे कि वो इधर जाओ प्रसाद विनियोग करो, उधर जाओ पुस्तक विनियोग करो, इधर यू क्लीन द फ्लोर हियर, सम सर्विस आर अदर विल कम। हम देखते हैं ना मंदिर में ऐसे बैठ के देखते हैं तो एक भी ब्रह्मचारी या फुल टाइम डिवोटी फ्री नहीं होंगे। दे आर ऑलवेज बिजी रनिंग अराउंड डूइंग सम सेवा और अदर, isn't it? As I was in NVCC, here, everywhere I'm seeing, everybody is busy, always busy. That is the beauty of this voluntary service. क्योंकि खुद हम स्वेच्छ थे, हम आके हम पूछते हैं, मांगते हैं सेवा दीजिए प्लीज। कहीं आप पूछते हैं क्या? कंपनी में या वो पैसा देते हैं, उसके बाद भी ऐसे सोचते हैं वो मालिक है, मालिक सोच के सेवा करते हैं खुद को। सेवा मीन्स वॉलंटरी, और साथ साथ वॉलंटरी में भी ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल यानी गुण के अतीत। जब सेवा करते हैं तो हमको चुनौती तो आज कुछ समस्या तो आता रहेगा, यू विल हैव गेट सम चैलेंजेस। उस समय हमको गुण के ऊपर रहना है, समझ गए ना? अगर वो गुस्से में कुछ बोलता है, हमको वापस उनके पास ऐसा करना नहीं। वी शुड नॉट डू टिट फॉर टैट। हमको चैतन्य महाप्रभु जी हमको खुद के उदाहरण से हमको समझाते हैं। कैसे बोलते हैं, जब ये अध्याय का शुरुआत है ना, उसके पहले सनातन गोस्वामी आके पूछते हैं इनको, भगवान से पूछते हैं, आपने स्वारूप भट्टाचार्य को ये आत्माराम श्लोका का 18 अलग अलग तरह का आपने अर्थ बताया, समझाया उसको, तो आप मुझे भी वो समझा सकते हैं क्या? उस समय चैतन्य महाप्रभु जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, वो स्वारूप भट्टाचार्य एक पागल है और मैं भी एक पागल हूँ। तो वो पागल है, वो ऐसे आके आपको बोल दिया, मैं भी पागल हूँ। महाराज बोलते थे, हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी, अगर आपको ये भौतिक जो तीन जो है ना, आदि भौतिक, आदि तीन दुख होते हैं ना, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, इन तीनों से बचना है तो हमको अगर किसी से पास जाते हैं ना तो उनके प्रशंसा करना है और खुद का निंदा करना है। इसका ऑपोजिट करते हैं ना विपरीत, जो तपड़ मिल जाएगा। अगर किसी के पास जाके हम प्रभु जी आई एम अ रास्कल, तो वो क्या बोलेगा? प्रभु आप महान है खुद को रास्कल बोलते हैं। उनके पास जाके बोलता प्रभु यू आर अ रास्कल, then what will happen? This is the way to survive the threefold miseries, escape the threefold miseries. You go and tell प्रभु जी I don't know anything, आप बताइए प्लीज, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, समझा सकते हैं, तो he will be happy to explain to you. You don't know anything, listen to me. स्वारूप भट्टाचार्य ने वही किया। तुम तो सन्यासी हो, तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, मैं तुमको वेदांत सिखाता हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बर्ताव क्या है, क्या उन्होंने, कैसे उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया? उन्होंने हाँ मैं पागल हूँ, मैं मूर्ख हूँ। प्रकाशानंद सरस्वती उन लोगों के पास भी जब वो उसका मुलाकात हुआ, उस समय वो भी एक ऊंचे तर से आ रहे हो, उस तर से आ रहे हो सब लोग। वो सोचते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तुमको मुझसे ये सब बात समझ लेना है। तो व्हाट हैपेंस? तो ऐसे करने से हम लोगों के साथ संबंध रख नहीं सकते, रिश्ता नहीं बढ़ा सकते। वी कैन डू दैट। सो व्हाट इज चैतन्य महाप्रभु डूइंग? देयर आल्सो ऐसे बोलते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे अपने आप खुद नहीं बोला, वो बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने बताया कि मैं मूर्ख हूँ, मैं ये सब वेदांत सब समझ नहीं सकता हूँ। और इसीलिए बोले थे कि तुम सिर्फ ये नाम ले लो
दिव्य नाम को ले लो, जाप करते रहो, बस हो जाएगा तेरा सफलता। तो ऐसे बोलने से ये सब लोग है ना, इनको थोड़ा घबराहट हो गया कि हम ठीक तरह से करते हैं या वो ठीक तरह से करते हैं। इन दोनों में से, अरे ये तो बहुत नम्र है, हमको तो ये सब वेदांत सब वेदांत सब पढ़ के हमको नम्र होना चाहिए। तो वो पूछते थे, हाँ पहले वो ऐसे पूछते थे, तुम क्यों ऐसे पागल की तरह नाचते हो गाते हो? बोले मैं ऐसे नहीं गाता हूँ नाचता हूँ, ये नाम जब मैं लेता हूँ ना, वो अपने आप मुझको नचाता है। इसको मैं मेरे गुरु महाराज के साथ पास जाके पूछा कि महाराज क्या हो रहा है, आपने कुछ ये नाम दे दिया, मैं मंत्र दे दिया, मैं जाप कर रहा हूँ, मुझे ये सब हो रहा है। तब उनके गुरु महाराज ईश्वरपुरी जी बहुत आनंदित हो गए। तो वो बोलते हैं कि बच्चे तो यू हैव डन द राइट थिंग, आपने ठीक तरह से नाम जाप किया। तो ऐसे ही करते रहो और दूसरों को भी ये आनंद फैलाते रहो, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस, वितरण करते रहो। तो ये घटना को जब चैतन्य महाप्रभु जी, प्रकाशानंद, ये सब लोगों को बताया, वो आश्चर्यजनक हो गए कि ये कैसे ये कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरे बात पूछते थे कि वेदांत क्यों तुम पढ़ते नहीं हो? तो प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया अपने भावार्थ में हमको तात्पर्य में सुनाते हैं कि हम भी वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र। कैसे? हाँ, वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए वो सूत्र सिर्फ पढ़ने का नहीं, वेदांत सूत्र पढ़ने से सिर्फ उनको दुख हो जाएगा, दुख मिलेगा, क्योंकि वो इतना कठिन है और ड्राई है, इतना सूखा है, इट्स वेरी ड्राई, like our Sanatan Goswami is offering that chapati without salt with a dry roti to Radha Madan Mohan ji. उस तरह हमको ड्राई प्रसाद, इमेजिन हमको खिचड़ी प्रसाद देते हैं हमारे इसके में, नमक नहीं डालते हैं, कुछ मसाला और कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ राइस और दाल, कितने दिन तक हम खा सकते हैं? प्रभु जी कुछ तो नमक डालो ना, कुछ तो मसाला डालो ना, ऐसे पूछेंगे ना। तो इसी तरह वो वेदांत सूत्र है, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ दाल और राइस। लेकिन हमारा है जो कुछ भी, हमारा इतना स्वाद है इसमें, जब वेदांत सूत्र भागवतम के रूप में आ जाएगा तो और भी स्वाद, और भी बढ़िया, और भी पवित्र। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सिर्फ एक पागल भागवतम को पढ़ सकता है। ये हमारे राजकोट से मैं आ रहा हूँ। राजकोट में कुछ लोग हैं, कुछ हमारे यूथ लोग हैं, आपके जैसे कुछ लोग यूथ लोग हैं। उसमें से एक लड़का था, वो उधर की कांग्रेगेशन में से आ रहा है। तो वो क्या है ना, सिर्फ 1 साल पहले उनका से इतना था कि वो बहुत पबजी में पागल था ना। एकलौता पुत्र था, उसको बोलते हैं, महाराज बोलते हैं एकलौता पुत्र है एक, तो उनको लल्लू भाई बोलता है महाराज जी। तो ज्यादा उनको ये देते हैं ना पैम्परिंग, तो वी कैन नॉट करेक्ट उनको लल्लू भाई बोलते हैं महाराज। कुछ नहीं कर सकते उनको, सपोर्ट में आ जाएंगे। कुछ बोलते हैं बाहर के लोग, कुछ बोलते हैं ना माँ बाप उनके सपोर्ट में आ जाएंगे, और कुछ नहीं वो समझेगा। वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, बट सम आर वेरी वेरी rare souls, they are very rare, they will, without telling they will take it. तो ये है ना, इतना लल्लू है, अपने पबजी करता है, आई एम टेलिंग द ट्रू घटना, ये पबजी करता है। जय श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय, श्री गौरनिताय जी की जय। खेलता रहता है, पूरे दिन खेलता रहता है कि उनके माँ जब खेलता है ना, वो हाथ को फोन से बाहर उठेगा नहीं। तो उनको ऐसे 20 साल का है, ये 5-6 साल का नहीं, 20 साल का लड़का है। और उनके माँ वो प्रसाद सब बना के, जब वो खेलता है, वो खेलने का ब्रेक भी नहीं लेता, तो ऐसे आके स्पून में खिलाता है, खिला के खेलता है ऐसे। इट्स अ ट्रू थिंग, and he is so expert in playing PUBG that without looking at the screen he can play. And I don't know what happened. See, this is the situation of, Prabhupada's magic, Chaitanya Mahaprabhu's magic.
he is so addicted that he won't even have time to eat. 17-18 hours खेलता रहता था वो कंटिन्यूसली. तो ऐसे ही प्रभुपाद जी के जो कृपा उनको मिला, ही सर्च दिस ऑनलाइन एंड ऐसे ही ढूंढ के ऐसे देखा कि भगवद गीता बुक ऐसे ही कोई साइट में ऑनलाइन में ऐसा आ गया. तो वो ही बॉट द ऑनलाइन भगवद गीता, देन स्टार्टेड रीडिंग, जस्ट क्विकली वाज जस्ट स्टार्टेड रीडिंग. उसके बाद उनको और भी ज़्यादा जानने का इच्छा आ गया. तो ही कॉल्ड आवर राजकोट टेम्पल. Our devotees took the phone. Next 4 hours finished. 4 hours preaching. And then he fell flat. Then he said, I want to come. Since then, he is coming to the temple. PUBG is completely out of his life. And another PUBG came. You know what is another PUBG? Prabhupada's Unlimited Bhagavad Gita. He is preaching like hell, quoting slokas left, right and center, and he is going around creating, more and more programs and youths. And this is so Prabhupada's one Bhagavad Gita can change the life. You are a pagal there, you became a pagal here. And the parents are so happy that every Sunday they are coming to the temple. That mera bacha sudhar gaya. So, I don't know. What is the thing with your relationship with our Punet devotees with the cab drivers, Prabhu? Cab drivers है ना. मैं 2 घटना हुआ इधर. When I went from Vishal Nagar, first day when I came, उधर से मैं NVCC गया. तो हमारे श्री बलदेव प्रभु के घर में से सब चीज़ उठा के मेरे वैष्णव ड्रेस में I was going. तो there was the cab driver who came. The moment he saw me in dhoti kurta, he was very smiling happily. I thought, what is this person smiling for? तो मैं ऐसे ही चल रहा था, मैं सोच रहा था ओके इज फाइन. देन 15-20 मिनट के बाद उनके बाद बातचीत शुरू किया. तो वो इतना हमको रियलाइजेशन दिया कि आई डोंट नो एनीवन प्रीच टू हिम. वो बोलता था, प्रभु जी सर मैं हर हफ्ता रविवार को मैं मंदिर आ रहा हूँ. तो मंदिर में वो जैसा वो एटमॉस्फेयर वातावरण इतना अच्छा है कि मुझे बहुत शांति मिलता है. तो मेरे 2 बेटे हैं, उनको भी मैं लेके आता हूँ, 6 और 7 साल का है. और बाकी और लोग सबको फैलाते हैं. दे आर डिस्टर्बिंग एवरीबॉडी. इधर ही सबको मिलाते हैं और बाकी सब लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं. इधर ही इस्कॉन मंदिर में ही पॉजिटिविटी फैलाते हैं. एंड ही वॉज टेलिंग, अगर आपके मंदिर के अंदर कुछ गुरुकुल है तो मैं मेरे बच्चों को उधर मैं डाल दूंगा. ही वॉज टेलिंग दिस एंड आई वॉज सो हैप्पी टू हियर दिस थिंग. एंड आई थिंक हाउ दिस पर्सन गॉट सो मच मर्सी. I don't think anybody would have gone and preached to him. He's just taking prasadam, seeing everybody dancing and chanting. So this is the first Ghatna, Prabhu. And second thing, when I came back from NVCC to our Balavadi, which our Sri Baldev Prabhu's home, they booked the cab. That person, when he came to pick me up, as soon as he saw our devotees were there along with me, I was leaving. तो वो आके ऐसे हाथ उठा के अरे कृष्णा ऐसे उत्साह से बोलता था. तो आई थॉट ही मस्ट बी डिवोटी, बट इज नॉट ए डिवोटी. वो बोल रहे थे कि मैं कैब ड्राइवर हूँ और जिम में काम करता हूँ. तो पूरे रास्ते में मुझसे इतना बात करता था, इधर आने से इतना आनंद मिलता है हमको. अरे ये अजीब बात है सर, बोलता है मुझसे, अजीब बात है सर, कोई गाता है कोई बजाता है लेकिन हमको आनंद मिलता है. Imagine they are our preaching, what do you call, bullets, preaching, and we don't have to do anything. This is the thing, action speaks louder than words. अब देखिए इधर भी उसका उदाहरण है. आप सब बैठ रहे हैं, आप सब एक्शन करते हैं, मैं सिर्फ वर्ड्स बोल रहा हूं. इसीलिए मुझे माइक चाहिए, आपको माइक नहीं चाहिए. आई हैव टू स्पीक लाउडर देन योर एक्शन, है ना. You are all sitting peacefully and you are hearing. आप सुन रहे हैं, है ना. तो this is action. मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, अंदर क्या है आपको पता नहीं. So this is why I have to speak louder. So I need a mic. But you don't need a mic to show your action.
इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो देखिए हमारे सब जो कुछ भी प्रचार सेवा जो कुछ भी करते हैं, ये हम जो बोलते हैं उससे ज़्यादा वो हमको देखता है ना, हमको परसेप्शन बोलते हैं ना, उसमें से वो ज़्यादा सीखता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। वी डोंट अंडरस्टैंड, वी मे गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, वो एक मना कर देगा, लेकिन दूसरे बाहर से देखता रहेगा, दूर से वो देखता रहेगा कि ये कैसे इधर इतने समय खड़ा रहता है और ये कहता है इसमें क्या उसको मिलता है। सो दिस पर्सन वाज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, प्रभु ये कृष्ण जी ने क्यों 16,000 शादी किया, वो सब पूछा था, मुझे प्रचार करने का मौका दे दिया। I mean, हमको चाहिए क्या? I mean, what do you say for that? You know, to eat sugar cane, why do you need? I mean, you are paid and you are given the sugar cane to eat also, to chew also. It is like that, you know. So this is the beauty of our movement. हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर बैठना है, कोई आएगा और उनको सिर्फ ऐसे कुंजी बिहारी जी को दिखा के हम प्रसाद दे देंगे, बस फिनिश्ड, इस लाइफ इज फिनिश्ड, हटक जाएगा हमारे इसमें। हम सब ऐसे आए थे ना, you are also going around, what's happening, we are searching, nothing was working, going on. So this is why this shloka is very, very important for us to understand what Chaitanya Mahaprabhu is giving us, the message that Chaitanya Mahaprabhu is giving us. हमको पागल बनना चाहिए, ये पागल भागवतम के पागल बनना चाहिए. It's not that for outside, everybody is pagal anyway, even you go outside they are pagal only. So better be a pagal of Bhagavatam, better be a pagal of holy names. तो पहले जब हमारे सनातन गोस्वामी पूछते हैं, उनसे विनती करते हैं, भगवान आप हमको वो 18 अलग अलग का वो तो अर्थ आपने बताया था ना, वो आप हमको भी समझाइए. तो भगवान बोलते हैं वो एक पागल है, मैं और एक पागल था, हम दोनों ऐसे बातचीत कर रहे थे, उसके बारे में आप क्यों सोच रहे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं. तो वो बोलते हैं कि ये पागलपन एक दूसरा, अगर एक पागल है उनको भी समझ में आएगा. अगर हमको समझना है, ये सब समझना है, आपको पागल बनना चाहिए. तो ऐसे बोल के शुरू करते हैं अपने आत्माराम श्लोक का समझाते हैं उनको. तो इस समय वो बोलते हैं 60 अलग अर्थ, 60 डिफरेंट मीनिंग. पहले तो 18, इस तरह तो 60 हो गया. तो 61 वाले बोलने के पहले वो बोलते हैं, अलग अलग अर्थ बताने के बाद 61 वाले अर्थ बोलने के पहले बोलते हैं कि ऐसे 60 अर्थ है, मैं ऐसे ही पागल जैसे बताता हूँ आपको, पता नहीं आपको क्या समझ में आएगा. तो बोलते हैं ये अभी आपके संग से मुझे 61 वाला अर्थ आता है, वो भी सुन लीजिए. आप जैसे भक्त के संग से मुझे एक और अर्थ आ गया, मैं वो भी आपको बताता हूँ. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब हम इधर बैठते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको समझता हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान है, नहीं. आप सबके वो क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, तीव्रता और फोकस, उसकी प्रेरणा से मुझे थोड़ा भगवान देते हैं. हमें जो कुछ भी इधर बैठते हैं, जो भी इधर बैठते हैं ना, उनको प्रेरणा देते हैं भगवान, वो बाहर आता है. बस वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट हम ऐसे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु जी हमको देते हैं. दैट प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ इज प्रूविंग दैट पॉइंट वेरी नाइसली है. तो उसके बाद सनातन गोस्वामी जी बताते हैं, विल जस्ट रीड द इंग्लिश अलोन, यू नो. After this, all these things that comes, 293, it's about 300 comes. This chapter is the most beautiful chapter to read, you know. इसमें वो मृगारी का स्टोरी भी आएगा. Very nice. 320 संक्षेप का प्रदान करने के लिए कहा है. सनातन गोस्वामी स्पीक्स अ ब्यूटीफुल लाइन. इस तरह 322 322 और 311 321, yes, 3. Yeah, before that also.
लेट्स रीड दिस। इस तरह मैंने 60 भिन्न भिन्न अर्थ बतलाए और वे सबके सब कृष्ण की सेवा को ही लक्षित करते हैं। It all points to only one thing, that is service to Krishna. इतने सारे उदाहरण देने के बाद यही एकमात्र अर्थ है। अब तुम्हारी संगति से तुम्हारी संगति से एक अन्य अर्थ स्फुरित हुआ है। तुम्हारी भक्ति के कारण ही अर्थों की तरंगें उठ रही हैं। Your devotional service is the cause of my all these explanations. This is very important to understand. शिव जी ने कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, श्रीमद् भागवत को या तो मैं जानता हूं या व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी जानते हैं तथा व्यासदेव जानते हैं अथवा नहीं जानते। इस निष्कलंक पुराण श्रीमद् भागवत को केवल भक्ति से सीखा जा सकता है, भौतिक बुद्धि चिंतन विधियों या काल्पनिक टिकाओं द्वारा नहीं। भक्त्या भागवतम ग्राह्य न च बुद्धिया न च टीकया। इट्स अ वेरी वेरी फेमस लाइन। प्रभुपाद यूजेस दिस मेनी टाइम्स। आत्माराम श्लोक के विभिन्न अर्थों की व्याख्या सुनकर सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन व्हाट चैतन्य, हाउ सनातन गोस्वामी इज ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, आप महाराज नंद के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। सारे वैदिक ग्रंथ आपके श्वास के माध्यम से ध्वनित होते हैं। हे प्रभु, आप भागवत के आदि वक्ता हैं, अतः आप ही इसके वास्तविक अर्थ को जानते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थ को नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये सुनिए, इट्स हाउ नाइसली ही इज रिपीटिंग रिस्पॉन्डिंग। तुम मेरा स्तवन क्यों कर रहे हो? तुम मेरा स्तवन क्यों कर रहे हो? तुम्हें श्रीमद् भागवत की दिव्य स्थिति को समझना चाहिए। तुम इस महत्वपूर्ण बात पर क्यों नहीं विचार करते? इस अगेन फॉरवर्डिंग इट बैक टू भागवतम। श्रीमद् भागवत कृष्ण के तुल्य महान है, जो कि परमेश्वर तथा सबके आश्रय है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में तथा प्रत्येक अक्षर में अनेक अर्थ निहित है। दिस व्हाई व्हेन दे टेक वन श्लोका, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur took 6 months class for just that one shloka, na? How much he was taking? When we sit with our Guru Maharaj, no, he will just take one word from the Bhagavatam for one shloka. One word from one shloka. एक शब्द ही निकलेंगे और 5 घंटा उसके बारे में, नॉन स्टॉप 5 घंटा। हम जब भी राजकोट में जाते थे, हमको ये ब्रेकफास्ट का, I mean, we never knew that there is something called breakfast. हमारे भागवत क्लास शुरू होता है 8 बजे को, 7:30 8 बजे को, इमीडिएटली आफ्टर गुरु पूजा, और 1 बजे को खत्म होता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी सॉ दैट ओके देयर विल बी प्रसाद। वी सी महाराज वाज वेरी मर्सीफुल, तो ही गेव अस इन बिटवीन, क्या बोलेंगे, उन्हें विल गिव अस असाइनमेंट। वी गेट सम ऑफिस कॉल्स, सॉरी कॉल्स टू फ्रॉम अदर वर्ल्ड डिवोटीज और एनीवेयर एल्स, असाइनमेंट पूरा करो, बाद में आके मैं पूछूंगा आपको। This all these things you have to do. This is pagalpan, you know. We have to do means this is pagalpan. श्रीमद् भागवत का रूप प्रश्नों तथा उत्तरों में दिया हुआ है। This is a very beautiful thing that Chaitanya Mahaprabhu is revealing to us. श्रीमद् भागवत का रूप प्रश्नों तथा उत्तरों में दिया हुआ है। इस तरह निष्कर्ष स्थापित किया जाता है। इस प्रश्नों तथा उत्तरों को सुनकर मनुष्य को अत्यधिक आश्चर्य होता है। देखिए, भगवद गीता और भागवतम क्यों इतना मीठी है, क्यों इतनी मीठी है? क्योंकि ये प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हमको उसके रूप में हमको दिए हैं। दैट्स व्हाई वी वोंट फील बोर्ड। अगर कुछ प्रश्न हमारे अंदर है, वो अर्जुन या परीक्षित महाराज या शौनक ऋषि या कोई पूछ लेंगे उनको, तो वी डोंट हैव टू, देयर इज नो क्वेश्चन इन द वर्ल्ड दैट इज नॉट आस्क्ड इन भागवतम, दैट इज आउटसाइड, इट इज नॉट। जो कुछ भी प्रश्न हमारे मन में है या कोई भी, वो तो इसमें है, उसका उत्तर भी है और बार बार भी आएगा। तो अगर आपको अलग अलग तरह से आपको देखना है, वो वी कैन डू दैट आल्सो। तो इसके बारे में वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्स इज देयर इन भागवतम। इट इज 1:3:38 आई थिंक, पहले स्कंद में 3रे अध्याय में, इट्स अ ब्यूटीफुल श्लोका that tells about the importance of asking questions, the power of asking questions. 1:3:39, sorry. Atheha dhanya, please repeat, beautiful verse.
भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वा आत्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः. It's a very, very beautiful sloka, and it will fix our faith so nicely in our Shastras, I'll read the translation. Only by making such inquiries in this world can one be successful and perfectly cognizant. For such inquiries invoke transcendental ecstatic love unto the personality of Godhead, who is the proprietor of all the universes, and guarantees 100% immunity from the dreadful repetition of birth and death. इसमें क्या हमको समझ में आता है? The point is only by making such inquiries. प्रश्न पूछते हैं ना, जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न से ही हमको ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी आ जाएगा. You don't have to get the answer. उत्तर पाने तक इंतजार नहीं करना है हमको. The moment you ask questions, Krishna is bestowing upon us transcendental devotional service. इसीलिए प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है. देखिए, can one be successful and perfectly cognizant? हमको we have to be successful. जीतना है हमको ये भक्ति में. भगवान तो अजीत है, लेकिन उनको जीत सकते हैं हम. अजीता जीता है समबति भी ही. ये प्रायसो अजित जितो अपि आसितै स्त्रीलोक्यः. वो अजित है, लेकिन भक्त लोग उनको जीत सकते हैं. तो उनको जीतते हैं ना, तो भक्ति में हम जीत जाएंगे. We all want to be successful. We all want to be glorified, right? That is the thing. अतेह धन्या भगवन्तमितं यद्वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्मकम आत्मभावम. This is most important things, तो प्रश्न पूछने से हमको for such inquiries invoke transcendental ecstatic love unto the personality of Godhead. वो जो प्रश्न पूछते हैं ना, उसमें से हमको भगवान के ऊपर प्रेम आ जाएगा. We will start doing loving devotional service. हमको समझ में नहीं आएगा. You won't feel it, no? But it is happening inside, right? So this is the important point. We connect with this. See how Bhagavad Gita and Bhagavatam Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita are connected. You see, Bhagavatam saying inquiry is very important. और भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवत का रूप प्रश्नों तथा उत्तरों में दिया हुआ है. There is a बातचीत हो रहा है उसमें, right? There is a dialogue. तो it will not be a boring thing. तो उसके बाद बोलते हैं he is giving उदाहरण देते हैं. अब जबकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम प्रस्थान कर चुके हैं, तो कृपया हमें बताइए कि इस समय धर्म की रक्षा किसके द्वारा की जा रही है? Who knows the shloka for this? ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे धर्मण्ये ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः. ये शौनक ऋषि पूछते हैं सूत गोस्वामी से, भगवान तो वापस धाम गोलोक धाम चले गए, तो ये धर्म ज्ञान आदि वैराग्य आदि कहाँ है? वो कहाँ छिपा के रखा है भगवान? तो इसके उत्तर है कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशाम एष पुराणार्को धुनोदितः. जब कृष्ण धर्म तथा दिव्य ज्ञान समेत अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए, तो श्रीमद् भागवत नामक यह पुराण इस कलयुग में सूर्य के समान उन लोगों को आलोक देने के लिए उदित हुआ है जो आध्यात्मिक दृष्टि से विहीन है. सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज, प्रश्न भी भागवत के अंदर है, उत्तर भी भागवत के अंदर ही है. अगर आपको उत्तर मिलना है तो भागवत से बाहर नहीं जाने का, भागवत के अंदर ही है. और चैतन्य चरितामृत भी भागवतम ही है. भागवतम और चैतन्य चरितामृत में फर्क नहीं है. कुछ हम ऐसे गलतफहमी होता है हमको कि चैतन्य चरितामृत भागवतम से अलग है, बंगाली में लिखा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं. हम एक प्रभु जी पूछे थे हमको, भक्ति विनोद ठाकुर
बताए हैं कि अगर आपके ये फ्लड होता है ना, दैट्स बिकम्स यू नो व्हेन योर हाउस इज इन फ्लड burn. So then you go to the rooftop with just 3 books, leave everything else. Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. If it is going up, then you leave Bhagavad Gita, but don't leave Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Even if it goes up, leave Bhagavatam also, but don't leave Chaitanya Amrita. This is the thing that people start wondering, oh, Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita में फर्क है? No, it's not like that. आप देखिए, अभी हम भागवतम में 3-4 श्लोक पढ़े थे, सॉरी चैतन्य चरितामृत में, उनमें से कितने श्लोक भागवत श्लोक है? 3-4 बंगाली एंड देन 2-3 अगेन भागवतम श्लोक. तो हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, अगर आपको भागवतम का 18,000 श्लोक पढ़ नहीं सकते तो उनमें से मुख्य श्लोक तो चुनना है ना. तो उसको चुनने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करने का, सिर्फ चैतन्य चरितामृत चाहिए. उसमें जो कुछ भी भागवत श्लोक उनमें है लिखे हैं वो सब मुख्य श्लोक है. And whatever Bhagavad Gita slok is given there, they are the mukhya slok of Bhagavad Gita. So what Bhaktivinoda Thakur ji is telling here is that even if you leave Bhagavatam, the most mukhya sloks are in Chaitanya Charitamrita. So you take that. Along with that, the application of the important slokas are also there through the vyavhar of all the bhaktas. So there also you take that, and that with that you go. So when you take Chaitanya Charitamrita, you have Bhagavatam with you, the most important slokas of Bhagavatam with you. At least you save some, no? When we have the AG, no? When the fire accident or the forest fire or something comes, you will leave with whatever you have, minimum at least, isn't it? You will not be looking at all the other things. Here, suppose, please forgive me, in Christchurch and all, it happened, that earthquake, Bhukamp aa gaya. So what did they do? The first thing they looked out was for the deities. They left everything else, treasure, the khajana, सब कुछ को छोड़ दिया. सिर्फ deities are safe, they were looking for. When Dwarka, when Bhukamp aa gaya, the whole building started shaking, and Maharaj was in the 3rd floor with some devotees. He was sitting there and he was preaching to them with some devotees who were third topmost floor, and from ground it was shaking. तो ये कुछ भक्त लोग ऐसे भूकंप आ गया, they were all chanting and they all started running away. Some devotees, they felt that Maharaj is in the top floor. हमको, the first thing they thought was not even their own life. They were thinking, Maharaj को बचाना है. So they were rushing up. Already that thing was a broken stairs, wooden stairs, and it is broken. Even if you walk slowly, you have to walk very carefully. But these people have to run to somehow or other take Maharaj. And there Maharaj was sitting, and everybody who was sitting, they were all wondering what's happening. Something like a building is shaking and their heads started rotating. So that devotee came inside. जो वो भक्त ना, वो आ गया अंदर. महाराज भूकंप आ रहा है, आपको निकलना है इधर से. भूकंप आ गया. हो तो हम सब मरने वाले हैं. अच्छा, आप सब हरि बोल बोलो. You are going to die. Chant Hare Krishna mantra. And those devotees are wondering, अगर महाराज को मरना है तो हमको उनके साथ क्यों मरना चाहते हो? और वो जो भक्त ना, वो डिसाइपल शिष्य आए थे महाराज को लेके जाने के लिए, वो बोला था, बाद में बोला था वो, कि उस समय मैं सोचा क्यों ये महाराज से मैं दीक्षा लिया. पकड़ गया मैं, उनके साथ मुझे भी जाना है. तो महाराज बोले थे, you also sit, let's all chant Hare Krishna. So see, when he thought that most important to save Maharaj thought that what is the most important thing to do now? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. This is how he was teaching what is the most important thing in life. And when they all came down, Maharaj बोले थे कि उन सबको, आज मैं आप सब के आंखों में मृत्यु का भय देखा मैं. You chanted sincerely only today. So like this, is this Prashna or Uttar. It's so nice. Bhagavatam is full of Prashna and Uttar. तो हम एक nice study method निकाले थे इसमें से. तो we just take out all the questions from Bhagavatam. Then there are total 360 questions in Bhagavatam. I collected. And I think it may be going to 370. We are doing the exercise once again with all our Infosys Pune devotees. तो इसके उत्तर ढूंढने से आपके पूरे जिंदगी खत्म हो जाएगा.
You know, and with that, you will get the answers to all the questions the outside world are asking. So you just have to preach whatever is there in Bhagavatam. They will ask question, why I am suffering here? Sanatana Goswami asking, Chaitanya Prabhu is answering, our Kapil Muni is answering to Devahuti. It's all the same. तो आप उधर जा सकते हैं, कहीं जाने का नहीं. You just have to get it from here. So this is how, you know, we can understand Bhagavatam and joyfully. आनंद से हम समझ सकते हैं, केवल आनंद कंद बोलते हैं ना. तो विद दिस वी ऑल्सो अंडरस्टैंड वी हैव टू लीव. हमको इधर से जाना है. महाराज हमको एक महामंत्र बोले थे. आपको महामंत्र बोलने के बाद एक महामंत्र मैं सिखाता हूँ आपको. वो बोलते थे कि रिपीट करो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे अवश्य जाना है. महाराज जैसे बोलते थे, अरे मुझे जाना है, अरे मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, हरे हरे. दिस इज द महामंत्र. क्यों? अगर मैं समझ लेता हूं कि मैं मुझे इधर से जाना है, मैं ये सब क्या मद पीना वो सब उसमें अटक नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गेट कॉट इन दैट. आई एम डेफिनेटली आई हैव टू गो एंड एवरीबडी हैज टू गो. हम सबको जाना है. तो दिस इज समथिंग विच ही टॉट अस. एंड देन योर हरे कृष्ण महामंत्र विल बी वेरी नाइसली यू विल चैंट. First, before Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, we chant, Hare mujhe jana hai, Hare mujhe jana hai. He made everybody chant this thing. No, Hare mujhe jana hai, Hare mujhe jana hai, mujhe jana hai, mujhe jana hai, Hare Hare. तो इसके लिए वो बहुत बढ़िया उदाहरण हमको बताते थे कि वो महाराज इजिप्ट गए थे. इजिप्ट जब उधर थे, एथियोपिया, इजिप्ट, उधर कुछ साल उधर रहते थे, काम कर रहे थे. तो उधर एक you don't see this fun world and those kind of things, the whatever the exhibition something they will have. तो उसमें तो एक गुफा था. गुफा के अंदर और कोई कुछ अनेक चीज उधर रखे थे. उनमें अंदर कुछ इधर हड्डियां रखे थे उधर. उसके ऊपर ऐसे it was like lighting on top of it, just some bones were there. तो उधर से आवाज आ रहा था. वो उधर से वो क्या है ना, अंग्रेजी में बताता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा. व्हाट यू आर वी यूज्ड टू बी, व्हाट वी आर यू आर गोइंग टू बी. समझ में आ गया ना. जो स्थिति में मैं हूं, जो स्थिति में आप हैं, मैं उस तरह था. जो स्थिति में मैं हूं, आप होने वाले हैं. This is what, at the end of the day, it's just a handful of ashes. सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी बली बुरी. That's all will happen. तो इसको सोच, अगर इसको हमारे दिल में हम फंसा देते हैं ना, it gets caught in our heart, then our chanting will be very peaceful. We will not be worried about, we will give priority to that which will take us back to Krishna. No, we may be sleeping very late, but Mangalarti is very important. So, if I don't sleep, I will die. Then Maharaj said, you are going to die anyway. At least die in Mangalarti. It is better to die in Mangalarti. At least come and die in Mangalarti. People will be chanting, and you are desiring that when I die, devotee should come and chant. And Prabhupada has made such a beautiful. You come and dance Sansara Dava. Then we'll do, beautifully chant, taking darshan of the deities, and in the association of devotees, chanting the Mahamantra. Who will get the better option than today? So Maharaj was always strict about Mangalarti. He said, you do Mangal Arati, you are inviting Krishna into our life, into our heart. So the day starts with Mangalarti, the whole day will become Mangal. That is why in 5th canto, we will start with this. In 5th canto, beautiful sloka, the Devatas pray. Nayatra Vaikunta Katha Sudhapaga Nasadavo Bhagavatastadashrayah Nayatra Yajnesha Mahamahotsava Suresha Lokopi Navaina Sevyatam. Beautiful shloka. You must be knowing this. Nayatra Vaikunta Katha Sudhapaka. Where there is no Vaikunta Katha, Krishna Katha,
नहीं हो रहा है, उधर मुझे रहना नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू लिव देयर. ना साधवो, कहाँ जहाँ साधु नहीं, साधु लोग जो भागवत आश्रय लिए हुए साधु, जैसे दूसरे फेक साधु नहीं, भगवान से आश्रय लिए साधु, वो जो लोग नहीं है उधर मुझे रहना नहीं. और जहाँ संकीर्तन यज्ञ नहीं हो रहा है, भगवान के नाम का गुण का ये सब नहीं हो रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, उधर मुझे नहीं रहना है. वो सुरेश लोकोपी, वो स्वर्ग लोक होने पर भी मुझे उधर नहीं रहने का. इतना बढ़िया श्लोक है. मुझे सुरेश लोकोपी. कुछ लोग बोलते हैं ये मंदिर तो छोटा है, हमको बढ़िया मंदिर में. इधर छोटा होने से हम भगवान के नजदीक में है ना. एक बहुत बढ़िया है ना, माया चक्की जानिए किल रूप भगवान, किल निकट सो बच गए बाकी हो गए पिसान. समझ गए आप? हिंदी में ही है. माया चक्की जानिए, वो चक्की है ना, उसमें वो चक्की और राउंड है, वो माया है. और किला सेंटर में जो किला है, दैट स्टिक, वो है भगवान. किला निकट सो बच गए, जो आप उसमें सब डालते हैं ना, ग्रेन सब डालते हैं ना, धान्य सब, वो निकट में जो होता है वो बच जाएगा. और भगवान से बाहर जाता है, दूर जाता है, वो पिसा जाएगा, बाकी हो गया पिसा. इतना बढ़िया श्लोक है. मेरे कहावत ये सब भागवतम है, सिर्फ भागवतम है. तो हमको सिर्फ एक ही बात हमको भगवान से मांगना है, आपके पास हमको हमको आपके शरण के निकट आप एक जगह छोटा सा, दैट इज द थिंग. आई नंद तनुज किंकरम पतिता माम विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंत्य. भगवान चैतन्य महाप्रभु यही मांगते हैं भगवान से. हरे कृष्णा. जय ग्रंथराज श्री श्रीमद चैतन्य चरितामृता की जय. जय श्री श्रीमद चैतन्य श्री श्री गौर निताय भगवान की जय. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय. शील प्रभुपाद की जय. शील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि जो प्रश्न है. Question. I have there also one question regarding how Sanatana Goswami also says how Bhagavatam, every word is, like nectar of shower. And sometimes we hear there are some description about the things which are may not be directly related to Krishna in one sense, like some like universe creation, so material elements. It may normally it is said every word is related to Krishna. So sometimes that whole shloka may not have any connection. So is it that it has a connection through the whole pastime? That's why we say it's a connection to everybody is a love of God. Everything is Krishna in one word. So how we understand this? So that is how we that is we call it postgraduate thing, no Prabhu. So what it means is that the more we keep studying Bhagavatam, the more we see the connection of that individual shloka also with Krishna, are not different from Krishna. It's not that shloka may not be, when we see initially first few times we read, it may not make much of a sense. But even if it is something to do with some demons or something, the pure Bhagavatas will see the connection even in those, which is not apparently seems like doesn't have connection. So that is why Chaitanya Mahaprabhu is saying, no, every verse, what to speak of every verse, every word, every line in a verse is Krishna. Why every line? Every word in every line is Krishna. What to speak of every word, every shabd, every akshara in every shabda is Krishna. So it is actually it is just what is separating us is the bhav. So once we start having that bhav, even those which apparently doesn't seem like connected with Krishna will be connected with Krishna. So the whole, that is why we have to keep on churning, then we will get connection. We will say, hey, this is how it is related. This is how this is not different from Krishna. So that dhvani, Prabhu, Divya dhvani, that's very beautiful to enjoy. So it is just that, the distance is that we have to be even more and more attached to Bhagavatam. Then these things Krishna will reveal, Prabhu. Yatha deve tata gurau tasya te
Katida Hirtaha Prakashante Mahatmanaha, it is said, no? That is how it will be revealed. Many times, why Parikshit Maharaj is listening all these things when he has only 7 days to live? He could have said, directly go to 10th canto. But there is a beautiful thing that said in about 5th canto, that the complicated things and all, no? I don't know if Parikshit Maharaj says or Shukadeva Goswami says, but the point they say is that by discussing these, even these topics, very, very important, because only by discussing these topics we can come out of the 3 modes. 3 gun ke bahar aa jayenge hum. That is very important, because we think that, see, only as long as we are inside that this, environment, devotee environment, and we are out of the modes. The moment we go out, we are caught by the modes. So we are not yet free of the modes. So it's not that we should think that this doesn't seem to be connected. Even if it seems to be unconnected, not connected, we should do it even as a matter of fact. You just do it. You just hear. Parikshit Maharaj is hearing all these things. He was not telling these things, let others hear, let me go and have some water. No. Imagine we are taking prasad and reading these things, we find it difficult. He was fasting and reading these chapters without sleep. How much more difficult it must be. We are in a better position, so we'll take advantage of that. All Kirtan, Prabhu, everything is Kirtan. There is nothing in Bhagavatam that is not Krishna. That is why Chaitanya Mahaprabhu said, Srimad Bhag, what is that? Aradhyo Bhagavan Brajeshatanayas Taddhama Vrindavanam Ramya Kachidupasana Vrajavadu Varge Naya Kalpita. Third line is very important. Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumarto Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhor Matamidam Tatradharo Na Paraha. I don't know anything beyond this. This is Chaitanya Mahaprabhu's ultimate conclusion. That's all. Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumarto Mahan, and then Aradhyo Bhagavan Vijayasatanis Taddhama Vrindavanam. Then do devotion service like how the gopis and gopas of Brajavadu, they were all doing. That's all. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु साथ बैठ के पागल हो गया। वो पागल थे, मैं भी पागल बन गया उनके साथ। वैसे हम देखते हैं कालचक्र कृष्ण प्रभु अपने गुरुजी के साथ बैठकर, है ना, वो भी पागल हो गए। उन्होंने पूना में 2 टैक्सी वालों को पागल किया। वो मुझे पागल वो पागल है तो टैक्सी वाले भी पागल हो गए थे उनके साथ। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी की इतना सुंदर क्लास सुनकर हम भी पागल होंगे थोड़े से, तो पागलपन हम में भी आएगा कि हम भी चैतन्य चरितामृत और भागवत को जिस तरह प्रभु जी इतना स्वाद के साथ उसको चखते हैं और वो स्वाद इतना स्वादिष्ट है कि वो प्रचार भी करते हैं उसका, तो हम भी ऐसा स्वाद चख पाएंगे। तो हम इस ग्रेस काल चक्र कृष्ण प्रभु को एक बार धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस काल चक्र कृष्ण प्रभु की जय। Some question? हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के अवसर पर श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर 1000 रुपए का डिस्काउंट है। चैतन्य चरितामृत किसी भी भाषा में आप ले सकते हैं, और ये पहले 100 भागवत के जो चैतन्य चरितामृत के जो सेट्स होंगे उस केवल 100 सेट्स के लिए है। आपको अगर चाहिए होगा तो आप जीवदया डिपार्टमेंट में जाकर संपर्क कर सकते हैं। पहले 100 चैतन्य चरितामृत सेट, उसके ऊपर 1000 रुपए डिस्काउंट होगा। हरे कृष्ण।